Hello students, dear board aspirants of class 12th. Today we are going to have a complete explanation of your first chapter from the Flamingo book, that is the last lesson. See how ironic it is, कितनी strange बात है कि chapter first का नाम है the last lesson. It is chapter 1 but it is named as the last lesson. How ironic and how strange it is. The last lesson. So before moving ahead in the chapter, I want to tell you that what message this chapter convey and what idea the narrator highlights through this chapter. So this chapter mainly highlights the vital importance of language, mother tongue and one's cultural identity. This chapter is basically highlighting the importance of mother tongue, the importance of language, that how important the mother tongue is there for the people living in the particular region. And this story is set in that time when the Germany defeated the France. When Germany defeated the France and they have forcefully imposed their policies, their rules over the French people. So this chapter also will highlight that how far it is correct that the rules, regulations, even the basic right of the people are deprived when they are defeated in the war. And we have seen here that it is mentioned that Alphonse Daudet, he is the author of this chapter. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by the Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and the part of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into the Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on the life of IT school. So we will see that when Germany defeated the France and that these districts of France, Alsace and Lorraine, that comes into the hand of Prussians, then how they have deprived the people of Alsace and Lorraine from speaking their mother tongue. How forcefully it was imposed on them that they have to speak in German only. And even the school syllabus was amended. It was announced that in the schools of Alsace and Lorraine only German language will be taught. So हम इसमें ये देखेंगे कि जर्मनी ने जब फ्रांस को डिफीट कर दिया तो जर्मनी ने अपने रूल्स, अपने लैंग्वेज को फ्रांस पे फोर्सफुली इम्पोज कर दिया और स्कूल्स के लिए एक गाइडलाइन दे दी कि जितने भी स्कूल्स, ये अल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. एंड फ्रेंच वाज देयर मदर टंग, फ्रेंच लैंग्वेज वाज देयर मदर टंग एंड दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम स्पीकिंग देयर मदर टंग. उनको अपनी मातृभाषा बोलने के अधिकार से भी हटा दिया गया और ये गाइडलाइन दी गई कि जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. ये एक आउटलाइन है. अब हम स्टोरी में देखेंगे. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द सीन द लिटिल फ्रेंच, अ स्मॉल स्कूल गोइंग चाइल्ड. ही इज द कैरेक्टर देयर एंड वन मोर मेजर कैरेक्टर इज मिस्टर एम हैमल. Mr. M. Hamel is the teacher who had costed his 40 golden years in the service of mother tongue. Mr. M. Hamel कौन है? Mr. M. Hamel स्कूल टीचर हैं जिन्होंने अपने लाइफ का 40 इयर्स मदर टंग को पढ़ाने में, मातृभाषा को पढ़ाने में दिया है. और लिटिल फ्रेंच एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question on participles. So when little French, he started for the school very late on that morning and he was very feared of being scolded by Mr. M. Hamel. Mr. M. Hamel was very strict teacher. जैसा आपने देखा होगा स्कूल में जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, जब वो कोई होमवर्क देते हैं और हमें वो भूल जाता है तो नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी होते हैं कि अब हमें स्कूल जाना है और सडनली वो होमवर्क हमें याद आ जाए कि वो तो मैंने इस सर का होमवर्क नहीं किया, तो सबके सारे बच्चों के स्कूल में एक कोई ऐसा टीचर होता है डिसिप्लिनेरियन. तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि
वो टीचर, अरे इनका होमवर्क करना तो बहुत जरूरी था भाई, ये तो बहुत डांटते हैं, तो क्लास से बाहर कर देंगे, मुझे कॉरिडोर में खड़ा कर देंगे, हाथ ऊपर कर देंगे और मुझे ऐसा पनिशमेंट मिल सकता है, ये मुझे डांट सकते हैं. सो द सेम वॉज देयर विद द बॉय. ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल very late on that morning and he was in a great fear of being scolded by Mr. M. Hamel, because on that day he was going to ask questions on participle and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the days out of the door. And Mr. M. Hamel was going to ask the question about participle and little Franz was not knowing the ABC of participle. उसे उस पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता था, उसका कुछ भी प्रिपेयर नहीं था. एंड ही वॉज वेरी फियर्ड, वो बहुत डरा हुआ था कि ये तो सर पूछेंगे, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, पनिश कर सकते, डांट सकते हैं, तो वो बहुत डरा हुआ था. तो फॉर ए मोमेंट ही थॉट दैट टू बंक द स्कूल. उसने पहले सोचा कि स्कूल बंक कर देते हैं, बाहर टाइम बिताएंगे. एंड ही थॉट दैट I will run away from the school and will spend my days out of the school. स्कूल बंक करके चलते यार, कहीं घूमे टहलेंगे, उसके बाद जब स्कूल का टाइम ओवर हो जाएगा तो घर पे रिटर्न वापस आ जाएंगे. तो इस तरह से by this way he wanted to escape. वो इस तरह से बचना चाहता था. By this way he wanted to escape. It was so warm, so bright, the birds were creeping at the edge of the woods and in the open field back the sawmill and the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to the school. तो बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा था? The birds were singing at the edge of the tree. The soldiers were drilling, practicing. मॉक ड्रिल चल रहा था उनका. वो क्या कर रहे थे? वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक ड्रिल कर रहे थे. And open field was there. The sawmill was there. And he thought that these all the things were tempting. ये सारी चीजें उसको ज्यादा टेम्प्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी. ठीक है, तो उसने सोचा कि रूल पार्टिसिपल के रूल्स को सुनाना, उसके लिए डांट सुनना स्कूल में, उससे बेटर क्या है? उससे बेटर तो ये है कि मैं स्कूल से बाहर रहूं, मैं स्कूल से भाग जाऊं और अपना टाइम इधर बाहर स्पेंड करूं. वेयर द बर्ड्स आर सिंगिंग, वेयर द सोल्जर्स आर हैविंग द मॉक ड्रिल इन द ओपन फील्ड, द ओपन लस ग्रीन सराउंडिंग इज देयर, इन द लैप ऑफ नेचर आई विल बी देयर एंड दैट विल बी मोर टेम्प्टिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. बट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ थी, उसने रेजिस्ट किया, अपने मन पे कंट्रोल किया. ही कंट्रोल्ड ओवर हिज माइंड एंड सोल एंड ही डिसाइडेड नो आई विल गो टू स्कूल. उसने सोचा स्कूल बंक करना अच्छा नहीं है, रेजिस्ट किया. ठीक है, ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When he was going to the school, when he has reached half of the way, he was passing by town hall. So he had seen that great crowd was there near the bulletin board. Bulletin board क्या होता है? एक नोटिस बोर्ड होता है जहां से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है. टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड लगा था और बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे. There was crowd at the bulletin board and he stopped there. For the last 2 years all our bad news had come from there. तो उसने सोचा, दिमाग में आया कि कौन सा अब न्यूज आ गया, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 2 years they had received all their bad news from the same notice board, from the same bulletin board. उसने देखा लोग वहां पे कलेक्ट हुए हैं. तो for a moment he thought in his mind that what could be there, why the people are gathered there, the lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought myself without stopping what can be the matter now. Then as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading about the bulletin board called after me, "Don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time." After that, when he was there and he had seen that many people were gathered there around the bulletin board, he thought that some sad news could be there, because from last 2 years they had received all their sad news from the same notice board. Their lost battle, their drafting orders, जितना भी उनको वो वार में हार गए थे, डिफीट हो गए थे, जर्मनी had defeated the France, और नए ऑर्डर्स ड्राफ्ट हुए थे, सारे न्यूज उनको वहीं बुलेटिन बोर्ड से मिले थे. तो उस लिटिल बॉय, लिटिल फ्रेंच को लगा कि इस बार भी कोई सैड न्यूज हो सकता है. बट ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड हिज टाइम देयर बिकॉज ही वाज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. स्कूल के लिए क्या हो रहा था? लेट हो रहा था. सो ही डिसाइडेड टू गो आउट, ही डिसाइडेड टू गो अहेड. Called after me after don't go fast, but some people like Watcher, Blacksmith who were already there, they told the boy, "Don't go so fast, bub,
उन्होंने क्या कहा उससे, बहुत जल्दी में मत रहो, बहुत जल्दी मत जाओ, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच टू स्कूल। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज आई वाज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल। तो आप देखिए, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे एक दिस इज ए काइंड ऑफ कमेंट सटायर, जिसको जस्ट अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट आपको क्या बोलते हैं, ये पढ़ने के लिए बोलते हैं। एक तो सीधा होता है कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, कैसे तुम्हारे अच्छा स्कोर करोगे एग्जामिनेशन में, ये सारी चीजें बोलते हैं। और एक इनडायरेक्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करोगे पढ़ लिख करके, क्या जरूरत है पढ़ने की, लाइक दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कमेंट। ये आपका एक तरह का कमेंट होता है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे होते। तो क्या बोलते हैं, ठीक है कोई जरूरत नहीं, क्या करोगे पढ़ करके, पढ़ना लिखना क्या होगा यार, क्या करोगे पढ़ करके। तो वो एक इनडायरेक्ट कमेंट होता है, ठीक है। तो बॉय को जब उन्होंने कहा, वॉचर ब्लैक स्मिथ हु वर देयर नियर द बुलेटिन बोर्ड, उन्होंने कहा यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए, क्यों इतनी जल्दी में हो। तो बॉय थॉट दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल। लिटिल फ्रेंड्स को क्या लगा, वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट था। सो ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम देयर एंड रीच टू मिस्टर एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एंड फाइनली ही हैड रीच्ड टू मिस्टर एम हैमल गार्डन वेयर द स्कूल वाज देयर। he reached to Mr. M. Hamel garden. Who is M. Hamel? M. Hamel is his language teacher, is the teacher of French language. Okay? और वो वहां पे बच्चा पहुंच जाता है, लिटिल फ्रेंच, ही रीच देयर, ही वाज ब्रीथिंग रैपिडली, वो बहुत तेजी तेजी से सांस ले रहा था, दौड़ के पहुंचा था उधर। Usually when the school began, there used to be great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get my desk without being seen. But of course, the day everything had to be as quiet as Sunday morning. So on that day when he reached to the school, then he found that usually when the school and the classes were running, there used to be a noisy atmosphere. जब रेगुलर क्लासेस चलती थी तो एटमॉस्फेयर नॉइजी होता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, see here mentioned there used to be the great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, ठीक है। द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, कुछ बच्चे लेसन्स रिपीट करते थे, टर्निंग ऑफ पेजेस, एंड दे वर जस्ट मेमोराइज, ट्राइंग टू मेमोराइज द लेसन्स बाय शटिंग देयर ईयर्स, ऐसे कान बंद करके जोर जोर से। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा क्लास में जब वो याद करते हैं और क्लास एटमॉस्फेयर नॉइजी होता है तो वो क्या करते हैं, दे आर जस्ट शटिंग देयर ईयर्स एंड दे आर रिपीटिंग द लेसन लाउडली. So the same was going on there, and these all the noise could be heard out in the street. ये सब आवाज जो है बाहर भी दूर से सुनाई देती थी जब रेगुलर क्लास. But on that day it was very strange atmosphere was there. It was as quiet as the Sunday morning. सब कुछ बहुत साइलेंस था. A pin drop silence was there. लग रहा था आज तो स्कूल ही नहीं, आज तो छुट्टी है, कहीं मैं गलत दिन तो नहीं आ गया. कभी कभी अचानक ऐसे लगने लगता है कि आप पहुंचे स्कूल में, एकदम अभी कोई बच्चा नहीं पहुंचा, आप स्कूल में पहले पहुंच गए, तो आपको अरे यार कहीं मैं गलती से स्कूल तो नहीं आ गया, कहीं आज संडे तो नहीं है, ओह माय गॉड कहीं आज छुट्टी तो नहीं है, ऐसा लगने लगता है. तो बच्चे को लगा कि आज तो क्लास का एटमॉस्फेयर कुछ नॉइजी नहीं लगता है, स्कूल में अंदर आते ही ये नॉइज जो है बाहर सुनाई देती थी, आज कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा, लग रहा है कहीं आज तो संडे तो नहीं है. इट वॉज एज क्वाइट एज द संडे मॉर्निंग, जैसे संडे को छुट्टी होती है तो छुट्टी वाले दिन की तरह लग रहा था, क्योंकि यूजुअली ऐसे नॉइजी एटमॉस्फेयर होते थे. टीचर्स यूज्ड टू रैप देयर रूलर्स ऑन द डेस्क, वो अपनी स्टिक को लेकर के ऐसे डेस्क पे पीटते थे, उसकी भी आवाज सुनाई देती थी. बट नो नॉइज वाज देयर, अ कंप्लीट पीसफुल एटमॉस्फेयर वाज देयर. तो इट वाज एज स्टिल एज साइलेंट एज द संडे मॉर्निंग. एंड थ्रू द विंडो आई saw my classmate already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. He was already late for the school. He wanted to enter into the class without being noticed. वो सोचा कोई मुझे देखे ना, मैं धीरे से जाके क्लास में बैठ जाऊं, ठीक है, पीछे से आके क्लास में पीछे बेंच पे बैठ जाऊं, ठीक है. सर पूछे कि लिटिल फ्रेंच कहाँ है, और सर मैं इधर हूं, मैं तो बहुत पहले से आया हूं सर, सुबह से बैठा हूं. So he thought like that. He wanted to enter into the class without being noticed. But how can it be possible? He had seen Mr. M. Hamel was walking
ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ऐसे स्टिक लेकर के ऐसे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, एंड ऑल द classmates were already there in the bench, already they were there at their seats, they have occupied their seats. So he wanted to enter, he had opened the door and go in before everybody. Finally he had opened the door and he entered into the class. Everybody had seen him. You can imagine, the little Franz is saying that you can imagine how blushed and how frightened I was. कितना मैं blushed, embarrassed, कितना मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था जब मैं क्लास के लिए लेट था, सारे बच्चे पहुंच गए थे और मैं डोर ओपन करके क्लास में इंटर किया। आपने देखा होगा कभी कभी क्लास चल रही हो और उस समय क्लास चल रही हो और कोई बच्चा लेट में आता है तो उसे थोड़ा डर लगता है क्लास में इंटर करने के लिए, और डर और ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो डोर ओपन करता है तो मे आई कम इन सर, तो टीचर बोलते आइए आइए कोई बात नहीं है, आइए आइए जब चाहिए तब आइए, आप ही का घर है, आप ही का घर है, आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे आइए, अभी क्यों आ गए। व्हाट आई टोल्ड, एक निगेटिव कमेंट होता है, टीचर या तो बोलेगा व्हाई आर यू लेट, ये डायरेक्ट हो गया, क्यों लेट हैं आप, क्या रीजन है, टाइम से क्लास में आइए। दूसरा बोलेगा क्यों अभी आ गए, बहुत टाइम है, अभी तो आए होते, एक पीरियड के बाद आए होते, लंच के बाद आए होते, आप ही का स्कूल है, ठीक है। ऐसे ये दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कमेंट बिकॉज यू आर बीइंग लेट, ठीक है। जैसा कमेंट उन लोगों ने किया जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास रुका जानने के लिए कि क्या न्यूज है, तो वहां जो वॉचर और ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने कहा क्या यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने कुछ और सेंस से कहा यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड व्हाई आर यू इन ए ग्रेट हरी, तो लिटिल फ्रेंच को लगा कि वो लेट है इसलिए वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। द सेम इज देयर, so he was feeling very blushed and frightened, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friend, we were beginning without you, but the teacher had talked very politely, लेकिन टीचर ने बहुत आराम से बात की। And when such a tender love or kind approach is met by such a teacher who is very strict, so it is really unpredictable and unexpected। तो कोई टीचर जो स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और आप उसका होमवर्क नहीं किए हैं या आपने कोई गलती की है और आपको बिना डांटे वो छोड़ देता है, तो आपको लगता है ओह माय गॉड ये क्या हो गया आज, तो दिस इज दैट मिराकल, मिराकल हो गया ये, ठीक है, चमत्कार हो गया, कैसे आज तो सर डांटे ही नहीं, कितना बढ़िया से बात की, हाउ गुड ही इज। झूठ में तुम लोग कहते हो यार अपने क्लासमेट से कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डांटते हैं, मुझसे तो बहुत अच्छे से बात की, आज से वो मेरे फेवरेट टीचर रहेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। फिर बट नथिंग हैपेंड, एम हैमल saw me and said very kindly go to your place, but Mr. M. Hamel who was a disciplinarian, who was a very strict teacher, and after that he said that little French go and occupy your seat, जाओ और बैठ जाओ, we were going to start without you, तुम्हारे बिना हम लोग लेसन स्टार्ट करने वाले थे, आओ आओ जल्दी आओ बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk, not till then when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize day. Beside the whole school seemed so strange and solemn. After that, he had seen, when he occupied his seat, he had seen that his teacher, Mr. M. Hamel, was dressed in a very different style. Okay, the dress that is mentioned over here, he was dressed in a very different style. Little black silk cap, okay, frilled shirt, beautiful green coat, and such dress he used to wear on special occasions only, like the prize distribution day, inspection duty, तभी वो ऐसा ड्रेस पहनते थे। तो उस दिन वो ऐसा ही ड्रेस पहने थे, एकदम पार्टी टाइप वाला, एकदम फुली ड्रेस, ही वाज ड्रेस्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। सो ऐसे ड्रेस वो कब पहनते थे, स्पेशल ऑकेजन्स पे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्पेक्शन डे पे। सो लिटिल फ्रेंच वाज सरप्राइज दैट व्हाई माय टीचर इज ड्रेस्ड इन सच ए वे। सो आफ्टर दैट he had seen atmosphere was looking very strange and very silent, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always used to empty the village people sitting quietly like ourselves. But one more thing happened with him that was very surprising and shocking for him. The last benches of the classroom that used to be vacant, जो last benches थे classroom के वो खाली रहते थे, ठीक है, और उस पे उसने क्या देखा, last benches were occupied by the villagers, village man, ठीक है,
always used to be in Patti, the village people sitting quietly like ourselves. वहां पे गांव के लोग बैठे हुए थे. कौन से लोग? प्रोमिनेंट पीपल, ठीक है, हाउसर, पोस्ट मास्टर एंड विलेज प्रोमिनेंट पीपल, विलेज हेड, दे हैव ऑक्युपाइड द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम. वो क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठे थे. वो बेंच जो अक्सर क्या होते थे? एम्प्टी रहते थे, खाली रहते थे. भाई आज के टाइम में कहाँ खाली रहते हैं? बच्चे को बुला करके आओ फर्स्ट सीट पे बैठो, नहीं नहीं नहीं, नो सर, नो सर. वो सारे बच्चे कहाँ बैठना चाहते हैं? बैक बेंच पे, ठीक है. दे वॉन्ट टू बी कॉल्ड बैक बेंचर्स. तो आगे बुलाओ, पीछे जाके बैठ जाते हैं, पीछे जाके भागते हैं. दे आर हाइडिंग देमसेल्फ. ओके, दे आर फीलिंग दैट बैक बेंच इज अ सिक्योर प्लेस. होता है ना ऐसा? तो ये ऐसा नहीं था सीन, यहाँ पे डिफरेंट सीन था. द लास्ट बेंचेस यूज्ड टू बी वैकेंट. तो आज क्या थे? वो लास्ट बेंचेस भी फिल थे. कौन बैठा था? स्टूडेंट नहीं बैठे थे. The villagers, the village people, the prominent people of the village, they have occupied the last benches and they were sitting quietly like ourselves. जैसे बच्चे बैठे हुए थे वैसे वो भी बैठे हुए थे. ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं. यहां तक का एक्सप्लेनेशन. द चैप्टर इज लॉन्ग, सो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स. अभी हम लोग क्या करेंगे? यहां तक का आप रिवीजन करेंगे. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे मैसेज कर देगा. अभी यहां तक का आप रिवीजन करेंगे समरी का, और लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने किया, यहां तक आप लोग पूरा रिवीजन करेंगे. ठीक है, दे वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ. फिर हम लोग जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, द रेस्ट ऑफ द part of this chapter, I will deliver that explanation in my next video. Okay everybody, hope that you understood well. Okay dear board aspirants of class 12, you have to prepare well because this is scoring subject. What? स्कोरिंग सब्जेक्ट. आप मेरे वीडियोस को देखेंगे और इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाएंगे, और हम लोग लास्ट में बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ टू स्कोर 95+ मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को बूस्ट करेगा और आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा. ओके, सो गो थ्रू द रिविजन, go through the explanation part which I have delivered, and rest of the part I will deliver you in the next explanation, in the next class. The rest explanation will be given to you in the next class. Okay everybody, thank you very much.